Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So this was the most awaited and requested series from my students. I got many comments in the comment section. Ma'am, please start a series of NCERT solutions. So here it is. From this video, we will start the series of our NCERT solutions, and in this video, we will discuss the solutions of the chapter Getting Started with Python. And whether you are in class 11 and in class 12, this video is going to be very important for you, because अगर आप class 12 के students भी हैं तो इसका जो first question है plus last two questions, you can consider them as most important from your exam point of view also. So I request you to watch this video till end. So now let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? सबसे पहला काम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, so that आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. And if you like this video, do press the like button and share your views in the comment section. So now let's start our today's video. So now let's start with our first question. Which of the following identifier names are valid and why? In this question, some identifier names are given to you and you have to write which ones are invalid and you have to give the reason also. These type of questions are most important from your board exam point of view also. If you are in class 11th, make sure to clear its concept now. And if you are in class 12th, I hope इसके concept आपके clear होंगे. Basically, we are having certain rules for identifiers, कि which ones are valid and which ones are invalid. The first one is my identifier can start with a underscore or an alphabet. It can be in either uppercase or lowercase alphabet. Second, my identifier can contain digit, but it cannot start with a digit. Blank spaces not allowed. Keywords not allowed, special characters except underscore, right? Sirf underscore I can use, remaining special characters I cannot use, right? First one, see this serial underscore number dot. अब this is my invalid because यहाँ पर आपका special character आ गया dot. So this one is my invalid, right? ये भी आपने आंसर में लिखना है. Second one is first underscore row. So this is starting with a digit. So this is also invalid, right? $100, यहाँ पर मेरे पास special character आ गया, that is dollar. So this is also invalid identifier. Total marks, blank space is not allowed. So this is also my invalid identifier. Now see this total underscore marks, this is valid. Next is total dash and marks. This hyphen symbol is not allowed. So this is invalid. Percentage, before percentage it's underscore sign. So my variable or my identifier can start with underscore. So this is valid. True, this is invalid as true is my keyword, right? So यहाँ पर reason भी mention है, the same which I have explained you just now, right? Now see the second question. Write the corresponding Python assignment statement. अब आपको क्या लिखना है, कुछ statements given है, like assign 10 to variable length and 20 to variable breadth. You have to write the assignment statement. Python में basically उसका एक syntax लिखना है, right? So the first part is assign 10 to the variable length and 20 to the variable breadth. So what can I do? Length में मुझे कितना value चाहिए? 10. So I can write it like this, length equals to 10 and breadth equals to 20, right? Second, or method, what else I can write? Length, comma breadth equals to 10, 20, right? This is multiple assignment statement. हमने एक ही statement में multiple variables को value को assign कर दिया. So both methods are correct. You can write any one. Next part, assign the average of values of variables length
एंड ब्रेड्थ टू अ वेरिएबल सम। किस में असाइन करना है बेटा? सम वेरिएबल में। क्या असाइन करना है? एवरेज। एवरेज किसका? ऑफ वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो हाउ विल आई फाइंड आउट द एवरेज? लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड देन डिवाइड बाय 2, राइट? अब इसका एवरेज कैलकुलेट करके मैंने इसको किस में असाइन कर दिया? इन द वेरिएबल सम। नाउ सी दिस थर्ड पार्ट, assign a list containing strings, paper, gel pen and eraser to a variable stationery. तो that means किस वेरिएबल में असाइन कराएंगे बेटा? स्टेशनरी वेरिएबल में. So you have to write the name of the variable, that is stationery equals to क्या लेनी है मुझे बेटा? List. So that means I have to use the square bracket containing strings. अब इसमें मेरे पास string है बेटा. First one is paper, second one is gel pen and third one is eraser. Right? So this is the answer for this part. Next part, assign the strings Mohandas, Karamchand and Gandhi to variables first, middle and last. Very easy जैसे भी हमने किया है. Again इसके भी two methods हैं. First method is, you can see this here, first comma middle comma last equals to Mohandas, Karamchand and then Gandhi. तो इन तीन वेरिएबल्स में ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? और यू कैन राइट these in separate statements also. First equals to Mohandas, middle equals to Karamchand and last equals to Gandhi, right? Now next part, assign the concatenated value of string variables first, middle and last to variable full name. Assign तो बेटा किस में करना है? किस वेरिएबल में? full name में. और क्या करना है मुझे? concatenate. Strings को concatenate करने के लिए we are having plus operator, right? Make sure to incorporate blank spaces appropriately between different parts of name, which means first name, middle name, last name. इनके बीच में मुझे space भी चाहिए. अगर मैं डायरेक्ट concatenate कर दूंगी तो वो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, मोहनदास and then without space Karamchand and then without space Gandhi, right? But मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे in between space भी चाहिए. So what will you write? Full name इसमें assign करना है. First plus within quotes you will give space plus middle name plus within quotes you will give space plus last, right? Now see next question, question number 3. Write logical expressions. अब इसमें आपको क्या लिखना है बेटा? Logical expressions. Corresponding to the following statements in Python to evaluate the expressions assuming variables num1, num2, num3, first, middle, last are already having meaningful values. What does this mean? कि ये question given है, आगे इसके कुछ parts हैं, तो वहां पर आपके variables use हो रहे हैं num1, num2, num3, first, middle और last. तो we are assuming कि उनकी values already defined है, right? अब आपको logical statement लिखनी है और logical expressions जो होते हैं उनका आंसर बेटा क्या होगा? Either true or false, right? So इस तरीके से आपको अपने logical statements devise करनी है. The first one is the sum of 20 and minus 10 is less than 12. अब sum करना, that means 20 plus minus 10, right? I can write it like this. The sum of 20 and minus 10 is less than 12. So this is my logical expression or you can say logical statement जो मुझे क्या return करके देगा result, either true or false, right? तो अगर हम इसको solve भी करेंगे तो 20 minus 10 is 10, 10 less than 12, so final answer will be true, right? Now next is num3 is not more than 24, means num3 variable में कोई value है, उसकी value 24 से ज्यादा नहीं है, तो that means या तो उसके equal है या उससे कम है. So what we can write? Num3 is less than equals to 24, right? And second method, अगर मैं यहाँ पर greater कह रही हूँ, num3 greater than 24 और आगे मैंने क्या ऐड कर दिया? Logical operator not, one and the same thing, right? Now next is 6.75 is between the values of integers num1 and num2.
अब बिटवीन की रेंज के लिए व्हाट आई हैव टू डू, 6.75 is greater than equals to num1 and 6.75 is less than equals to num2. For an example, let's suppose जो मेरे को range given है that is 90 to 100, right? अब इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी, let's suppose as an example I am taking 97, right? अब जो 97 है that is greater than 90 and less than 100. So एक जो हम वैल्यू चेक करें सेम इसमें आपका that is 6.75 is greater than equals to num1 and 6.75 less than equals to num2. दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, right? Now see this D part, the string middle is larger than the string first. So that means middle string जो है आपकी larger है first string से and smaller than the string last. And मिडल स्ट्रिंग की आपकी क्या है, स्मॉलर से लास्ट से स्मॉल है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, लेस देन, राइट? सो दिस इज द करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी. अब इसको कैसे चेक करें? अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में कौन सा सिंटेक्स आ रहा है, लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी, तो दैट मीन्स स्टेशनरी इक्वल्स टू दिस, राइट? But this is incorrect बच्चों. This is the syntax to create an empty list. अब मुझे empty list create नहीं करनी, I have to check. That means I have to compare. अब for comparison, we are having double equals to operator, right? So I can check like stationary double equals to empty list. इससे check हो जाएगा कि whether my list is empty or not. Or I can check the length also. Length of stationary. If the length of stationary double equals to 0, अगर उसकी 0 के इक्वल है, that means we have compared, तो भी वो stationary जो आपकी लिस्ट है that will be empty, right? So these are the two methods to write the logical expression for this statement. Now see this next part, question 4. Add a pair of parentheses to each expression so that it evaluates to true. अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, राइट? इसमें पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई है, आपको ब्रैकेट्स इस तरीके से लगानी है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो ट्रू आ जाए, आंसर जो है मेरा रिजल्ट वो ट्रू आ जाए, राइट? सो अगर मैं इसकी बात करूं, 0 डबल इक्वल्स टू 1 डबल इक्वल्स टू 2, राइट? अगर मैं अपना जो पैरेंथेसिस है वो यहां पर लगा देती हूँ, राइट? सो 0 डबल इक्वल्स टू 1, it results me false. False double equals to 2. Non-zero value will be considered as true. तो क्या false और true equal है? नहीं, तो ये तो मुझे false देगा. तो that means मैं 0 और 1 में parenthesis add नहीं कर सकती. ठीक है, अब चेक करते हैं 1 और 2 के बीच में ऐड करके. 1 and 2, right? 0 double equals to 1 double equals to 2. 1 और 2 equal है? नहीं, तो it returns false. 0 आपका क्या होगा बेटा, false, right? तो false double equals to false, this is true. ठीक है, false मेरा false के इक्वल होता है, तो ये आंसर मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू, कि जो मेरा false है वो false के ही इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इट विल रिटर्न ट्रू. नेक्स्ट, 2 plus 3 double equals to 4 plus 5 double equals to 7. Now where to add the parenthesis to make this expression true? Let me write the expression here. 2 plus 3 double equals to 4 plus 5 double equals to 7. See, अब मुझे यहाँ पर ना बेटा 7 दिख रहा है, प्लस मुझे यहाँ पर 2 plus 5 का सम भी 7 दिख रहा है. Let's try to add parenthesis between 3 double equals to 4, right? So अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी 3 double equals to 4, it returns me false. अब अगर मैं false को अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लिखूंगी तो वो 0 की तरह वर्क करेगा. सिमिलरली अगर मेरे पास true है एंड इफ आई एम राइटिंग ट्रू इन माई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो वो आपका 1 की तरह वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 2 plus ट्रू, तो ट्रू मीन्स 1, तो 2 plus ट्रू मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 3, राइट? सो यहां से मेरे पास false आ जाएगा. Let's add one more parenthesis here also, right? So
3 डबल इक्वल्स टू 4, ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स. सो 2 प्लस फॉल्स प्लस 5 डबल इक्वल्स टू 7, एक मेरे ये ब्रैकेट. सो 5 प्लस 2 7, ये आपका मुझे 0 देगा. 7 प्लस 0 बेटा 7, और यहां से मैं अगर कंपेयर करूं 7 डबल इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू, राइट. So next part, add a pair of parentheses to each expression so that it evaluates to true. Same question है. 1 less than minus 1 double equals to 3 greater than 4. Let's try to add between these two. ठीक है, पहले इसमें लगाकर चेक करते हैं. 1 less than minus 1, right? This condition is false. 1 less नहीं है minus 1 से. Double equals to 3 greater than 4. 3 ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन भी फॉल्स है, बट फॉल्स मेरा फॉल्स के इक्वल है, तो दिस कंडीशन रिजल्ट्स में ट्रू, राइट. सो आपने पैरेंथेसिस इसी तरीके से यहाँ पर एड ऑन करनी है, राइट. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ इन दिस यू हैव टू राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. सो num1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 4. सो फ्रॉम हियर num1 इक्वल्स टू 4, num2 इक्वल्स टू num1 plus 1. That means 4 plus 1, 5. And in third statement, I am again changing the value of num1 from 4 to 2. So you have to print the values of num1 and num2. num1 की 4 value नहीं consider करोगे, you have to take the updated value. So now the value of variable num1 is 2 and for num2 it's 5. So your answer will be 2 and 5. Make sure not to write comma in between, right? जो आपका प्रिंट फंक्शन में कोमा गिवन है, ये आपका सेपरेटर आर्ग्यूमेंट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज स्पेस. तो दो नंबर्स के बीच में स्पेस आएगा, कोमा नहीं लिखोगे, राइट. सो द फाइनल आंसर विल बी 2 and 5. नेक्स्ट पार्ट, num1 comma num2 equals to 2 comma 6. That means from here the value of num1 equals to 2 and the value of num2 equals to 6. And in next statement num1 comma num2 equals to num2. num2 की वैल्यू बेटा 6 comma num1 plus 2. वैल्यू ऑफ num1 2. 2 plus 2 4, राइट. तो यहाँ से मेरे पास num1 की वैल्यू तो क्या आ रही है बेटा 6 and num2 is 4. So the final answer will be 6 and 4, right. Now C part, num1 comma num2 equals to 2 and 3. That means जो आपका वेरिएबल है num1, इट्स वैल्यू इज 2 एंड फॉर num2 इट्स वैल्यू इज 3. अब यहाँ पर मुझे गिवन है num3 कोमा num2 इक्वल्स टू num1. num1 में वैल्यू क्या साइन हो जाएगी 2 कोमा num3 प्लस 1. अब num3 की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल शो जनरेट द एरर, राइट. तो जो आपका एरर जनरेट होगा दैट विल बी नेम एरर. Name num3 is not defined. Now see next question. Which data type will be used to represent the following data values and why? कि अब आपको ये चीज गिवन है number of months in a year. If you want number of months in a year आपने लिखना है तो कौन सी डेटा टाइप होगी, मीन्स किस टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर कराओगे. सॉरी, किस टाइप की वैल्यू नहीं, कि स्टोर नहीं, वो किस टाइप की वैल्यू होगी, राइट. So number of months in a year, so that will be 12. So that means उसकी जो data type होगी that will be integer. Resident of Delhi or not. अभी आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है, मीन्स या तो वो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली होगा या नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स. सो ट्रू और फॉल्स के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप रहती है दैट इज बूलियन, और यू कैन से बूल. मोबाइल नंबर, फॉर मोबाइल नंबर वी कैन यूज इंट, बट अगर मोबाइल नंबर में आपको +91 भी ऐड करना है so then we can use string. Pocket money, ठीक है, integer but 25.50 पैसे समथिंग हो सकता है ना, ठीक है. तो that means we can use float. Volume of a sphere, अब इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 pi r क्यूब. अब 4/3 भी है, पाई भी है, तो वैल्यूज मेरी डेसिमल में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी. तो इसकी हमारी जो डेटा टाइप ये रिटर्न करेगा वैल्यू दैट विल बी ऑफ टाइप फ्लोट. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यू कैन चेक द रीजन हियर आल्सो. नंबर ऑफ मंथ्स, इंट डेटा टाइप विल बी यूज्ड क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स आपकी किस में होंगे, इंटीजर में.
resident of Delhi or not. So Boolean data type will be used to represent resident of Delhi or not, because जो value होगी that will be either true or false. Mobile number, for that we can either use integer data type और string अगर आपने +91 भी ऐड करना है. Pocket money, इसमें हम आपकी decimal value हो सकती हैं, so that will be your float data type. Next is volume of sphere. The volume of sphere is 4/3 pi r cube. Answer आपका point में आएगा, तो that means float. Perimeter of square 4 into side. अब side की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, ठीक है, तो हम फ्लोट लेकर चलते हैं यहाँ. नेम ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रिंग में लिखेंगे और एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट के लिए भी आपकी जो डेटा टाइप होगी दैट विल बी स्ट्रिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बेस पर आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट. सो द फर्स्ट पार्ट, num1 plus equals to num2 plus num3. This is my shorthand assignment operator, right? Plus equals to. अगर मैं इसको expand करूं, if it is written like this, a plus equals to b, so I can expand it like this, a equals to a plus b, right? So अब आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So num1, अगर मैं इसको expand कर दूं, num1 equals to num1 plus num2 plus num3, right? num1, num2, num3 की वैल्यूज गिवन है. लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. num1 is 4 plus num2 is 3 and plus num3 is 2. तो 4 plus 3 7 plus 2 is 9. num1 की वैल्यू प्रिंट करानी है, दैट इज 9. So this is the answer, right? Now next is num1 equals to num1 double star. This is your exponentiation operator. num2 plus num3. तो पहले ऑब्वियसली क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स. num2 की वैल्यू बेटा मेरे पास है 3 प्लस num3 is 2. सो 3 plus 2 मेरे पास क्या हो गया, 5. num1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 4. अब आपको क्या सॉल्व करना है, 4 raised to the power 5. So I think it's 1024 if I am not wrong. Yes, right? So 4 raised to the power 5 is 1024. नेक्स्ट हमारे पास है num1 डबल स्टार इक्वल्स टू num2 प्लस num3. इसको मुझे कैसे एक्सपेंड करना है, num1 इक्वल्स टू num1 डबल स्टार विद इन ब्रैकेट्स num2 प्लस num3, राइट. अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आंसर आएगा. बट इन दिस पार्ट नो प्रिंट फंक्शन इज देयर. अब इफ प्रिंट फंक्शन इज नॉट गिवन तो दैट मीन्स कोई आउटपुट तो आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है. बट ये मैंने सॉल्व करके जरूर दिखाया कि इन केस प्रिंट फंक्शन भी लिखा हो, कंसेप्ट भी आना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व होगा, राइट. नाउ सी दिस नेक्स्ट पार्ट, num1 इक्वल्स टू 5 प्लस 5. अब ये दोनों आपके किस में गिवन है बेटा, स्ट्रिंग में, राइट. अब इफ इट इज गिवन इन स्ट्रिंग तो मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन करूंगी, 10 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है. टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 55 विदाउट एनी स्पेस, राइट. Now see this next part, print 4.00 divide by 2.0 plus 2.0. First we have to solve the brackets. So 2.0 plus 2.0 will be 4.0. इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1.0. So this is the answer, that is 1.0. Now next part, num1 equals to 2 plus 9 into 3 into 12 minus 8 division 10. अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, सबसे पहले तो हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स. लेट मी राइट द एक्सप्रेशन हियर. 2 plus 9 मल्टीप्लाई 3 into 12 minus 8 डिवाइड बाय 10, राइट. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 plus 9 into 3 into 12 बेटा 36 minus 8. इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, राइट. अब जो आपकी 36 माइनस 8 वाले ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे. सो 2 plus 9 into 36 minus 8 will be 28, राइट. अगर आपको वापस से चेक करना हो 28 plus 8 कर दो तो आपका क्या आएगा, 36, राइट. डिवाइड बाय 10. अब इसको सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. नाउ वी आर हैविंग प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड. इन तीनों में मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस है,
इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले आप क्या सॉल्व करोगे, 28 इंटू 9, सो 2 प्लस लेट्स मल्टीप्लाई 28 इंटू 9, ठीक है, 9 8 जा 72, 9 2 जा 16, oh sorry 9 2 जा 18, 18 plus 7 will be 25, so 252 divide by 10। अब पहले मैं डिवाइड करूंगी, 252 डिवाइड बाय 10 विल बी 25.2, सो 2 प्लस 25.2 दैट मीन्स 27.2 जो है दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सॉल्व कर रखे जैसे अभी हमने किया है। पहले 3 इंटू 12 ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 36 माइनस 8, फिर 36 माइनस 8 सॉल्व करोगे 28, फिर आपने अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इसको सॉल्व करना है, राइट। नाउ सी दिस पार्ट 24 फ्लोर डिवीजन 4 फ्लोर डिवीजन 2। अब फ्लोर डिवीजन है लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे, ये मुझे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करके देगा, क्वोशिएंट, राइट। और किस फॉर्म में देगा बेटा, दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो इंट की फॉर्म में। 24 फ्लोर डिवीजन 4 फ्लोर डिवीजन 2, पहले इसको करेंगे, 4 6 जा 24, सो माय क्वोशिएंट विल बी 6, फ्लोर डिवीजन 2 2 3 जा 6, राइट, सो फाइनल आंसर विल बी 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोट 10। फ्लोट फंक्शन क्या करेगा बेटा, इस इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इट्स वेरी सिंपल, 10.0, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट 3.14, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इंट फंक्शन क्या करेगा, फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, बट ये मुझे स्ट्रिंग गिवन है, एक साथ मेरे दो कन्वर्जन इंट फंक्शन नहीं करेगा, मींस पहले स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना फिर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, नहीं, ये दो ऑपरेशंस इंट फंक्शन मेरा साथ में परफॉर्म नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, अगर सपोज लेट सपोज यहाँ पर गिवन होता इंट 3.14 तो इसका आंसर 3 आ जाता, बट नाउ इट विल जनरेट द एरर। तो आपका जो एरर जनरेट होगा दैट विल बी वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इन फंक्शन विद बेस 10, राइट। नाउ नेक्स्ट बाय डबल इक्वल्स टू बाय। अब पाइथन इज माय केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये दोनों मेरे इक्वल नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल नहीं है, तो व्हाट इट विल रिटर्न, फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 10 नॉट इक्वल्स टू 9 एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व करो सर, 10 नॉट इक्वल्स टू 9 एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 नॉट इक्वल्स टू 9 ट्रू है मेरा, 10 9 के इक्वल नहीं है, ट्रू, एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, अब या तो ग्रेटर हो या इक्वल्स हो, 20 20 के इक्वल है तो दैट मीन्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, ट्रू, राइट। नाउ सी दिस पार्ट, नाउ सी टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। अब सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है दैट इज ऑफ पैरेंथेसिस, यू कैन चेक आउट द चार्ट ऑफ दिस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले इसमें जो अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशिएशन है, आफ्टर पैरेंथेसिस यू हैव टू सॉल्व द एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, राइट। सो अब इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 दैट विल बी 4, राइट, नॉट इक्वल्स टू 9, फ्लोर डिवीजन 4 माइनस 3 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 29 डिवाइड बाय 9। अब चेक करो जरा मेरे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं आफ्टर एक्सपोनेंशिएशन दिस पॉजिटिव। अब मेरे पास ये है बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन मॉडुलस, इसमें मेरे पास मल्टीप्लाई भी है एंड फ्लोर डिवीजन भी है, डिवीजन भी है, सो यू हैव टू सोल्व दीज ऑपरेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सो इट विल बी 10 प्लस 6 into 4 that is 24 not equals to 9 floor division 4 minus 3 and 29 greater than equals to 29 divided by 9। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 24
not equals to 9 floor division 4. Quotient will be 2. 4 2 side. ठीक है, तो quotient will be 2 minus 3 and 29 greater than equals to 29 divided by 9. अब नेक्स्ट देखो मेरे पास not equals to हो गया. नेक्स्ट है मेरे पास डिविजन ऑपरेटर, राइट? तो यू हैव टू डिवाइड 29 डिवाइड बाय 9. सो यहाँ पर हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 10 प्लस 24 नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 3 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इट विल बी लाइक 9 3s are 27, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा. ठीक है, अब इसको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. 29 डिवाइड बाय 9 को भी आगे क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा क्यों. अब मेरे पास ऑपरेटर है बेटा प्लस, नॉट इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू. अब नेक्स्ट प्रेसिडेंस पर आ जाओ, दैट इज प्लस और माइनस. तो दैट मीन्स अब हम प्लस और माइनस सॉल्व करें. 10 प्लस 24 दैट इज 34, नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 3 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग. ठीक है, अब माइनस को सॉल्व कर देते हैं. 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1. सो 34 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग. अब मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एंड. अब चेक करो नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रेसिडेंस में मेरे पास है कंपैरिजन एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. तो दैट मींस ये नॉट इक्वल्स टू सॉल्व कर दे. 34 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज ट्रू, तो यहाँ पर आ गया ट्रू. एंड अब इसको सॉल्व कर देना नेक्स्ट स्टेप में. 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, तो ट्रू. ठीक है, अब एंड में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लॉजिकल एंड. ट्रू मेरे पास क्या होगा बेटा? ट्रू. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रू, राइट? ये स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर रखा है. आई होप ये आपको काफी क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ से दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 मॉड्यूलस 10 plus 10 less than 50 and 29 less than equals to 29. So now we are having modulus plus less than and less than equals to. तो पहले जो प्रेसिडेंस रहती है ना बेटा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की है, उसमें भी मेरे पास एक्सपोनेंशिएशन की पहले है, देन दिस, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, देन प्लस माइनस. सो वी हैव टू सोल्व 5 मॉड्यूलस 10 फर्स्ट. ब्रैकेट्स भी नहीं है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी नहीं है. सो 5 मॉड्यूलस 10 इट विल बी 5. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि 5 मॉड्यूलस 10 5 कैसे आया, अगर आप इसको प्रॉपर डिवाइड करो, लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग 10 मॉड्यूलस 5, तो हाउ विल यू डिवाइड दिस? 5 इनसाइड इट विल बी 10, 5 2s are 10, तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया बेटा 0, राइट? सो 10 मॉड्यूलस 5 तो क्या होगा? 0, इसका आंसर. इफ आई एम राइटिंग 5 मॉड्यूलस 10, सो व्हाट विल यू डू? 10 5 नहीं जाता है, 0 0, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया बेटा? 5. प्लस वन मोर मेथड इज देयर इन केस ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर. ठीक है, ओनली इन केस ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर इफ माय फर्स्ट ऑपरेंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द सेकंड ऑपरेंड. अगर मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है स्मॉलर है एज कंपेयर टू द सेकंड ऑपरेंड, तो आंसर आपका हमेशा ही फर्स्ट वैल्यू आएगी, राइट? सो 5 मॉड्यूलस 10 विल बी 5. So I hope ये कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो गया होगा. 5 मॉड्यूलस 10 will be 5 plus 10 less than 50 and 29 less than equals to 29. अब चेक करो मेरे पास लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू एंड है, प्लस है, तो दैट मीन्स पहले किसको सॉल्व कर लें? प्लस को. सो 10 plus 5 will be 15 less than 50 and 29 less than equals to 29, right? अब लेस देन और है और एंड है, तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? रिलेशन ऑपरेटर, दैट इज लेस देन. 15 लेस देन 50, दिस इज ट्रू. 15 स्मॉल है, लेस देन है 50 से, ट्रू. एंड 29 लेस देन इक्वल्स टू 29. ये सारे क्वेश्चंस आपने एक स्टेप में एक ही ऑपरेटर सॉल्व करना बेटा. ठीक है, 29 लेस देन इक्वल्स टू 29, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू. सो द फाइनल आंसर विल बी ट्रू. गिव द आउटपुट. अब इसमें पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा? ब्रैकेट, पैरेंथेसिस. नाउ लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. 0 लेस देन 6. लेट मी राइट इट हियर. 0 लेस देन 6, राइट. और फिर विद इन ब्रैकेट है बेटा नॉट 10 डबल इक्वल्स टू 6 एंड 10 लेस देन 0.
ठीक है, जो थर्ड ब्रैकेट क्लोज हो रही है बेटा दैट इज ऑफ प्रिंट फंक्शन जो मैंने स्किप किया, राइट। अब पहले इसको सॉल्व करो, 0 लेस देन 6 दिस इज ट्रू, और नॉट 10 डबल इक्वल्स टू 6 एंड 10 लेस देन 0। ये आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, राइट। सो यहां पर मेरे पास अब आ गया ट्रू और नॉट 10 डबल इक्वल्स टू 6 दिस इज फॉल्स, राइट। ये इस तरीके से क्लोज हो गई एंड 10 लेस देन 0, राइट। जो अभी हमने सॉल्व किया बेटा, इसको सॉल्व किया 10 डबल इक्वल्स टू 6, तो जो इसकी ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाएगी, दैट मीन्स दिस वन, ठीक है। जो हमने इसको सॉल्व कर दिया बेटा 10 डबल इक्वल्स टू 6, तो सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट अब आपकी हट जाएगी और ये वाले क्लोज रहेंगी दोनों, राइट। अब मुझे किसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, ट्रू और नॉट फॉल्स एंड 10 लेस देन 0, ठीक है। 10 लेस देन 0, सॉरी वेयर इज इट, दिस वन, 10 लेस देन 0 दिस इज फॉल्स, राइट। सो इसको भी सॉल्व कर दिया हमने, ये ब्रैकेट आ गई। अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, नॉट फॉल्स एंड फॉल्स। अब मेरे पास क्या क्या आ रहा है बेटा, नॉट एंड एंड, तो पहले मैं किसको सॉल्व कर दूं, नॉट ऑपरेटर को। और नॉट क्या करेगा, इफ माई रिजल्ट इज ट्रू तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दिस विल बी एज इट इज ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। अब एंड सॉल्व करना है, सो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। एंड के केस में आपका रिजल्ट सिर्फ तभी ट्रू होगा अगर मेरी दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू। सो ट्रू और फॉल्स, और में एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सो ये मुझे एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करके देगा, रिजल्ट ट्रू, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.